سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وقاص اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، درجہ خامسہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد مسئلہ ویسے یہ سنا ہے کہ فرض اور سنت میں تاخیر نہ ہو، لیکن جمعے کی جب 2 فرض ہوتی ہے اس میں پھر اعلانات کا سلسلہ، چندے کا سلسلہ، اس کے بعد کافی لمبی دعا بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سنت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں فرض اور سنت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ناجائز نہیں ہے یہ تاخیر، مگر یہ کہ بہتر یہ کہ تاخیر نہ ہو۔ فرض کے بعد وظائف بھی طویل نہ کیے جائیں، مختصر پڑھ کر وہ سنتیں پڑھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں، بعض حد رکوع تک جھک جاتے ہیں، لیکن ہاتھ وغیرہ چومنے کا سلسلہ نہیں، تو عقیدت میں جھکتے ہیں صرف، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ بہار شریعت 3 جلد صفحہ نمبر 464، سلام کا بیان۔ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں، یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے۔ سلام کرتے وقت جھکے نہیں، نارمل کھڑا رہے اور ہاتھ ملائے۔ حد رکوع تک جھکنے سے مراد یہ نہیں کہ اس طرح گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر اور بالکل پیٹھ بچھا کر، بلکہ اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ تو اس طرح واقعی ایک تعداد ہے کہ جو اس طرح جھکتی ہے سلام کرنے میں۔ ہاں اگر ہاتھ چومنے کے لیے جھکا تو ہاتھ تو چومنے کے لیے جھکنا ہی پڑے گا، کہ یوں نہیں کہ ہاتھ کھینچ کے چومے، تو ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا یہاں اس کی ضرورت ہے کہ چومنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اب جھک جائے، خالی سلام کرنے میں ہاتھ ملانے میں جھکنے کی ضرورت ہے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ ایک سوال ہے اور ایک اپیل بھی ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں درباروں پر اس میں شریعت کی کتنی اجازت ہے کہ وہ جاتی ہیں اور وہاں جا کے جو وہ کام کرتی ہیں، جو عقیدے رکھتی ہیں، کیا ان کا جانا جائز ہے؟ مزار شریف پر عورتوں کا جانا یہ علماء کرام نے منع فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا عقیدہ رکھتی ہیں، کیا غلط کرتی ہیں، یہ کوئی وضاحت آپ نے کی نہیں ہے۔ وہاں جا کر مرد بھی تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو جو بھی خلاف شریعت کرے گا وہ غلط ہے، اور جو مرد اس کے آداب کے مطابق حاضری دیتا ہے، سلام عرض کرتا ہے اور وہاں فیض اٹھاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ
सबाब का हकदार है, फेस भी मिलेगा उसको। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, सवाल है कि कीचड़ पैर में लगा और जहन में है कि इसको धोना है, लेकिन नमाज का वक्त करीब आया, फिर उसको देखा पैर में जैसे लगा तो उसका असर बाकी ना रहा और नमाज पढ़ ली, तो क्या नमाज हो गई? अगर वो कीचड़ नापाक था, कन्फर्म नापाक था 100%, सिर्फ शुबे से कोई चीज नापाक नहीं होती, अगर वो 100% नापाक था और अब वो असर बाकी नहीं है, असर बाकी ना होने की वजह क्या है ये देखी जाएगी। अगर वो पानियों से गुजरा है, पाक पानियों से, है ना, तो और वो धुल गए पाँव, तब तो ठीक है, वो अगर वो पाक होने की सूरत पाई गई है तो वो पाक हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, खुद ब खुद घिस घिसा कर कीचड़ का असर नहीं है, तो उस अगर वो कीचड़ नापाक है तो ये बगैर धोए इस तरह पाक नहीं होगा, खाली सूख जाने से। पाँव का कीचड़ जो लगा हुआ है तो पाँव पाक नहीं होंगे। अगर वो बकदर माने ने के जितनी मुमानत है नजासत की, ने 1 दिरहम से ज्यादा अगर था तो नमाज दोहरानी पड़ेगी, उसका फैलाव। जो गाढ़ी नजासत होती है उसके फिर अलग अहकाम है, उसका वजन से है। आपने भी मुल्क भर जब आपका जदवल होता था, दौरा फरमाते थे आप मदनी काफिलों में दूसरे शहरों में, तो ट्रेन में सफ़र फरमाया करते थे, तो आप क्या एहतियातें ये तारत के हवाले से? इसमें तो ऐसा है कि ट्रेन में तो वुजू अपने को तो उकले नहीं गया, जैसा तैसा आजमाइश होती है। और नल का स्टाइल भी जो है ना, वो अब पता नहीं क्या सूरत है, पहले जिस तरह का था उसमें तो वुजू करना मसला। तो मैं आमतौर पे अपना लोटा साथ रखता था, तो लोटा वहां से भर लिया, जैसे मुनासिब जगह पर ट्रेन के डिब्बे में ही वुजू किया, साइड पे बैठ के, तो इस तरह पानी बह जाता है नीचे, तरकीब बना ली। वहां तो वाकई बहुत दुश्वार होता है वुजू करना। अब एहतियात करने का ज़हन नहीं है, लोटा रखने का ज़हन नहीं है, समझे। अब गटर में डुबकी लगानी है, फिर पूछना कि ये पाक है या नापाक है, क्या हुक्म है। लोटा ही रख लो ना यार, बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, जहन के जो वसाविस हैं वो दूर हो जाएंगे। सफर मदीना में मैं तो लोटा रखता था, अल्हम्दुलिल्लाह। लोटा बहुत काम की चीज है वुजू के लिए। इस्तिंजा किया तो उसमें भी काम देगा वो लोटा। पानी का जालून भी मैं सफर में पानी का वो गैलन और लोटा मैंने बारहा मतलब रखा है। या प्लेटफॉर्म आते थे सफर में, प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी रुकती है जंक्शन खासकर, तो वहां वक्त होता है इतना, तो वहां वुजू कर लिया, वही लोटा ले लिया, क्योंकि रश होता है ना बाज़ नलों पर। अपना लोटा भर लिया या किसी ने वहां ला के भर के दे दिया, तो कहीं कोने खांचे में जाके बैठ गए। ये कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कि फिर अब जब मैं क्या करूं, कैसे फिर आप अगर एहतियात करना चाहें तो इसके तरीके मौजूद हैं, सब मदीना मदीना हो जाएगा। और ये जो इसमें क्यों नहीं होगा एक लोटे से वुजू? अब लुटिया भी आती है इतनी सी, फुल साइज का लोटा भी होता है। अब आप खुद फैसला कर लें क्या करना है आपको। 2 लोटे से भी अगर नहीं गुजारा होता एक लोटे से किसी का, तो दूसरा लोटा भी भरा जा सकता है, 2 लोटे भी रखे जा सकते हैं। पानी का वो अपने साथ डिब्बा होना चाहिए, जरूरतन वो भी भर लिया, ट्रेन में आगे काम आएगा। अगर उतरने की जगह नहीं मिली, ट्रेनों में भी तो पानी खत्म हो जाता होगा, तो इसलिए अपना वो ना डब्बा, जालून बोलते हैं इसको, मदीने में तो जालून बोलते थे, गैलन बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, गैलन, वो भर ले पानी का। पीने में भी काम आएगा, इस्तिंजा में काम आएगा, वुजू में काम आएगा, बहुत काम की चीज। पानी के बगैर तो हर जिंदगी ही नहीं है, पानी तो लाजमी जुज है हमारी जिंदगी का, तो ये तो हर वक्त साथ होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कि जैसे कि कहीं रास्ते में पेशाब करने के लिए रुकना पड़ा सफर में, मस्जिद भी करीब है, वुजू खाना में हिम्मत नहीं होती थी कि मस्जिद का पानी से अपना हाथ धोऊं, तो बाहर ऐसा मैंने किया है कि अपना पानी साथ उसी से हाथ धोए। मुझे डर लगता था यार ये पानी वक्फ का है, और कहीं ऐसा ना आखिरत में पकड़ हो जाए। इधर मूतने के लिए सब था, निजामी तो इबादत का है, नमाज का वक्त तो है नहीं। तो ये अपना जहन हो ना तो आदमी बचता रहे। मैं नाजायज नहीं कहता, उर्फ है इस पर कि लोग पेशाब करते हैं हाथ धोते हैं, मैं आपको समझाने की दर्ज कर रहा हूँ। आदमी जितना बचे, तो वाजिब तो नहीं है ना कि वो वहां से हाथ भी धो लो। अपना अगर हो तो मदीना मदीना,
सेल्फ सर्विस जिसको आप बोलते हैं, मदनी सिस्टम, तो मदीने वाले। कोई जाएगा लंदन को, कोई जापान जाएगा, मदीने की तरफ दौड़ेगा दीवाना मदीने का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम मोहम्मद नासिर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपने मदनी मुज़ाकरा बात की है कि टीवी दिखाने वाला भी मुजरिम और देखने वाला भी मुजरिम, गुनाह भरा, गुनाह भरी अब फिल्में। हमारे पास गाड़ियां हैं कि हम बुकिंग पे भेजते हैं ना, तो शादी वाले या स्कूल की ट्रिप वाले आ जाते हैं, कहते हैं जी हमें पहले ये गाड़ी दिखाओ, इसमें टीवी एलसीडी चलती है कि नहीं चलती। अगर वो हमारा थोड़ा सा डिफेक्ट भी हो ना, गाड़ी रिजेक्ट की, फिर दूसरी गाड़ी के पास गए। अब मैं ये दरख्वास्त हमारी इस पर रोशनी डालें कि हमारे दिल में ये खौफ आया कि इस चीज़ को हम बंद करें। आपको खौफ आया, अल्लाह मुबारक करे। ये खौफ जो है ना आपको इंशाअल्लाह ताकि हमें पार लगा दे। पता चल जाए भी इस रोकने का क्या जी हाँ। ऐसा तरीका। अब वही बात है कि इसमें है आजमाइश। साईं भाई एक अपने वो इमामे वाले नहीं है, वो भी ऐसे ही मॉडर्न है, लेकिन वो एक बार मदनी मुज़ाकरा सुन रहे थे और मदनी मुज़ाकरे में कुछ हराम हलाल की बातें आई। उसको कोई सौदा हो रहा था, उसमें शायद 3 से 4 करोड़ का उसको नफा हो रहा था। बाहर मुल्क से फोन आया, बोला कि बस वो मुझे नहीं चाहिए, वो उसमें था थोड़ा वो 19-20 करना पड़ रहा था, गुनाह भरा था वो सौदा, तो मैं बस उसको 3-4 करोड़ चूल्हे में गए, मुझे नहीं चाहिए। उसने मतलब वो सौदा ही नहीं किया। तो अल्लाह के बंदे पड़े ना ऐसे, क्योंकि आजकल ये तो है झूठ बोलना पड़ता है, फ्रॉड करना पड़ता है, ये गुनाहों भरे सिलसिले हैं। लेकिन जो बचना चाहे उसके लिए भी तो रास्ते हैं कि क़यामत के खौफ से जो बचेगा उसके लिए कुरान करीम की बिशारत है। और वो ऐसी बिशारत है कि वो जिसको मिल गई वो नेमत, तो न करोड़ों में वो खरीदी जा सकती है, न अरबों में खरीदी जा सकती है। दुनिया की सारी दौलतें, सारे हीरे जवाहरात एक तरफ और वो नेमत एक तरफ। वो नेमत ये है कि कुरान करीम में है वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से क़यामत में खड़े होने से डरा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। जन्नत का एक पत्ता, एक फल का कोई जर्रा भी दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। इतनी वो आला नेमतें हैं। और सर उसका समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, उसका कोई मोल ही नहीं, कीमत ही नहीं है। अल्लाह अता करता है, तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए। तो ये वाकई ऐसा ही है कि अगर वो गाहक जाता है तो चला जाए, रसूलुल्लाह नाराज नहीं होने चाहिए, अल्लाह ताला नाराज नहीं होना चाहिए। और मतलब हराम हराम है, गुनाह गुनाह है। तो इसलिए वो गाने बाजे की वजह से गाहक टूटता है, तो ज़ाहिर हुक्म शरई यही है कि गाहक भले टूटे, हाँ, वहां से रिश्ता नहीं टूटे अपना। अल्लाह ताला असबाब कर देगा और वो मतलब सामान कर देगा। अभी जैसे शोबिज के भी कभी कभी मदनी मुज़ाकरे होते हैं, तो शोबिज के मदनी मुज़ाकरे में फनकारों के जो फिल्मों में ड्रामों में जो काम करते हैं, इनमें एक शख्स था, एक ईसाई भाई अब तो बन गए वो, कि वो खड़े होकर उन्होंने तौबा की। और शायद ये कह रहे थे कि ये तकरीबन मेरे शागिर्द हैं, वो जो जमा हुए थे ना, तो पावरफुल टाइप के थे, बस मैंने आज तौबा की। इसके बाद जब मदनी मुज़ाकरा हुआ तो अब ये इमामा दाढ़ी बढ़ गई थी और इसने बोला कि मैं वही हूँ, मैं नहीं पहचान सकता, मैं वही हूँ जो आगे आपके बैठा हुआ था और मैंने तौबा की थी। और अल्लाह का करम है मुझ पर कि पहले जो मैं हराम कमाता था ना, उससे ज्यादा अब मुझे सुथरी रोजी मिलने लगी है। अल्लाह ने ऐसे असबाब कर दिए कि पहले से ज्यादा कमा रहा हूं मैं। तो अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। चलो आजमाइश भी हो गई कि पहले से कम रोजी मिली, जो भी हुआ, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी ये नहीं होनी चाहिए। आज जिंदा है, कल छोड़ के चले जाएंगे, बच्चों के हाथ में आएगी, बच्चे कौन से आपके लिए मस्जिदें बनाएंगे। सारे को आजकल औलाद क्या करती है। तो इस तरह मतलब ये कि 2 निवाले बंदा कम खाए, हलाल के खाए, हराम के ना खाए, या गुनाहों के जरिए ना खाए। अगर वो रोजी हराम नहीं भी हो रही तब भी एक जरिया तो उसका गुनाह भरा है ना, कि गाने बाजे की हमको वो होनी चाहिए। वाकई ऐसा सुना है मैंने कि बस में भी जो पैसेंजर होते हैं बाहर,
وہ بھی اگر اس کو پتا چلے کہ اس میں گانا نہیں بجے گا تو سنا ہے کہ بعض وہ نہیں بیٹھتے اس میں، گانے والی میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر روزی تھوڑی ہے، روزی تو رب دیتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ رب دیتا ہے، تو اس لیے ہم کو حلال کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ آپ کی گاڑی ریجیکٹ کر دیں گے نا؟ نہیں، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اچھا اب جس سے یہ ڈر ہو، روزی کا رازق اللہ ہے. روزی کا رزاق اللہ ہے. یہ بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ نے مجھے قلم دیا ہے، کچھ قلم دیے تھے تو اس میں سے آپ کو تحفہ دیتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی مجھے. اور قلم بھی سبز ہے. کہ جن کو یہ ڈر ہے نا کہ اگر ہمارے گاڑیوں میں گانے بازوں کی سہولت نہیں ہوگی تو ہماری گاڑی ریجیکٹ کر دی جائے گی، وہ اس ڈر کو نکال دیں، بلکہ وہ ایسے ہو جائیں کہ جو گاڑی اس لیے لے گا کہ اس میں گانے باجے بجانے، تو آپ اس کسٹمر کو ریجیکٹ کر دیں. اب ایسے کریں گے. ہمیں وہ کسٹمر ہی نہیں چاہیے جو ہماری آپ ریجیکٹ کریں. وہ کیوں آپ کو ریجیکٹ کرے گا؟ یہ اور آپ کے ذریعے میں اور جو آپ کے جو شعبے سے متعلق ہے ان کو تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. آپ کی ملتانی ہے کیا؟ ہاں جی، ملتان. ہاں ملتان. ملتان میں دیوان کی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. اللہ، ٹی وی پہ دیکھتے نا آپ کو. ملتان مدینۃ الاولیاء ہے. اولیاء کرام نے آ کر وہاں بسیرے کیے نا کہ یہ لوگ جو ہے نا خدمت کرنے والے لوگ اور ماننے والے لوگ ہیں. اب میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو اگلے دن آئیں گے ان سے داڑھی رکھوں میں. سبحان اللہ. اب تک منڈوائی، اس سے توبہ. ہاں جی. لیکن دیکھو اتنی سی نہیں، فیشن کے نہیں، ایک داڑھی. مٹھی نیچے سے. ہاں جی ایسے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. چلو اب اس دیوانے کے پیچھے کوئی اور بھی تو یار ہمت کرو نا. وہ ملتانی ہو، اپنی دیوانگی کی لاج رکھو. ایک ملتانی نے تو اعلان کر دیا. انشاءاللہ زوجل میں بھی رکھوں گا. انشاءاللہ. مرحبا. باقی توبہ بھی کر لیں جو جنہوں نے منڈائی ہے اور نیت کر رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت نصیب فرمائے. حافظ محمد نعمان اطاری، میرپور کشمیر. پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مگر ہمارے کچھ اسلامی بھائی اپنی چادریں وہاں پر رکھ کر چلے جاتے ہیں اور جو بعد میں آتے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ اور وہ بالکل تکبیر اولیٰ کے وقت آتے ہیں اور پہلی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں اپنا مدنی پھول ارشاد فرمائیں. یہ طریقہ نہیں ٹھیک، اس سے تنفیر عوام ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہوں گے لوگ ظاہر ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ خود چادر کے بجائے چادر والا جو ہے نا وہیں بیٹھ جائے پہلی صف میں آ کے، تو ہی قربانی کہلائے گی. باقی تو مسلسل بھی آدمی بول سکتا ہے کہ میں یہیں پڑھوں گا، میری چادر کوئی نہیں ہٹائے. اب کوئی دادا گیری کرے تو اس کے نہیں ہٹائیں گے، ہر وقت یہیں پڑی رہے گی چادر. تو یہ نہیں، وہاں بیٹھا ہے اور اب بیٹھے بیٹھے دیر سے بیچارہ بیٹھا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی پیشاب وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی، وضو ٹوٹ گیا اور وہ جانا چاہتا ہے، تو اب کسی کو بول دے گا نا کہ میں آ رہا ہوں، یہ دیکھو میری چادر ہے، تو کوئی بھی اس کی ہمدردی کرے گا کہ بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا، یہ کیا ہے. تو اس سے کوئی لوگ ناراض بھی نہیں ہوں گے، جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، وہ آ کر واپس بیٹھ جائے. تو یہ صورت ہے. رمضان شریف میں زیادہ ہوتا ہوگا ایسا، خصوصاً معتکفین کو یہ بس بیچاروں آزمائشیں ہوتی ہوں گی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی اس شعر کی وضاحت فرما دیں. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. یہ نہیں ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے. یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. قبر میں جا کر پکار رہا ہے غلام کہ یا رسول اللہ میں اندھیری قبر میں آ پڑا ہوں. اپنے گورا مانے سفید، نورانی ہے نا، گورا میں سے سفید کو بولتے، تو اپنے نورانی پاؤں یعنی اپنے نورانی قدم میری قبر میں چمکا دیجئے، یعنی آپ تشریف لے آئیے ہے نا، آئیے قدم رنجا فرمائیے، آپ کے قدموں کی برکت، اور اس طرح بولتے تو آپ تشریف لے آئیے. مراد یہ آپ تشریف لے آئیے میری اندھیری قبر کو
रोशन कर दिए। नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब तार है, यानी कि नूर यानी रोशनी है ना, तड़का रोशनी, नूर का तड़का हो प्यारे, या नूरानी सुबह हो जाए मेरी कब्र में, कि मेरी गोर माने कब्र, गोर की शब तार है, तार माने अंधेरी, तो मेरी जो कब्र की रात है ये अंधेरी है, आप आ जाइए तो सुबह का उजाला हो जाएगा, नूर हो जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इमरान है। बाबा सवाल यह है कि हम अक्सर सलाम करते हैं तो जो सलाम करता है तो अदब की यानी तो अदब की वजह से वो अपने हाथ चूम लेते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? सलाम करने के बाद हाथ चूमते हैं अपना लोग, हाथ मिलाने के बाद बाहर शरीयत में इसको मना लिखा है। अलबत्ता जद्दुल मुमतार के हवाले से आला हज़रत ने जो रद्दुल मुख्तार पर हाशिया लिखा है तो वो ये है कि हाथ चूमने के बाद अपना हाथ चूमना, अगर किसी जैसे बुजुर्ग से हाथ मिलाया और तबर्रुकन चूमा बरकत लेने के लिए, इस नियत से चूमा तो अब कोई करात नहीं है। लेकिन अब यह कि यह नियत तो होती नहीं है और सामने वाला बुजुर्ग है या नहीं इसका भी पता नहीं होता, और बुजुर्ग से मिला तब भी ये नियत हो दिल में कि मैं बरकत लेने के लिए कि हाथ मिला है किसी नेक बंदे से तो मैं अब इसको बरकत के लिए चूम लूँ, तो ये नियत ने ज़ाहिर है हाजिर होना यह दुश्वार है। तो ये हाथ चूमने का ज़हन से निकाल ही दिया जाए, जैसे कोशिश है ना बचा जाए। अवाम के अगर चूमेगा तबर्रुकन नियत नहीं है चूमने की तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो मुमानत तो रहेगी हाथ चूमने की। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम अत्तारी, बाबुल मदीना कराची। बाबा आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ है कि नमाज जुमा की पहली अजान के बाद कारोबार करना कैसा? पहली अजान सुनकर नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए पहुंचने के लिए कोशिश शुरू कर देना ये वाजिब है। जैसे खा रहा है तो जल्दी निपटा ले, वुजू कर रहा है वुजू कर ले, यानी कि जल्दी निपटा के पहुंचे। और इस दौरान अब बय ओ शरा, खरीदो फरोख्त, खरीदना भी और बेचना भी हराम। सल्लु अलल हबीब। बापा हमारा बांग्लादेश में ये होता है कि जब कोई आदमी फौत होता है तो उनकी जनाजा की नमाज की बात एक ने फुकार के कहते हैं कि ये लोग कैसा था, तो जो नमाज वहाँ मौजूद होते हैं तो उन्होंने फरमाते कि ये अच्छा लोग था, अच्छा आदमी था। सूदखोर भी होते हैं, अच्छा भी होते हैं, बुरा भी होते हैं। तो इसके लिए ये कहना कि ये अच्छा था, ये कैसा है? ये नहीं आपने बताया कि पूछना कैसा है कि ये कैसा था। जी सही है, पूछने वाले की भूल है ना। अब जो बेचारा दुनिया से चला गया मुसलमान था तो उसके लिए दुआ खैर करे। इसका टोह में पड़ना वैसे किसी और के लिए भी बिला ज़रूरत इसकी टोह में पड़ना, गुनाह की मालूमात करना, जिसको कुरान करीम वला तजस्सु और तजस्सुस में मत पढ़ो, यानी किसी के गुनाह की टोह में, तलाश में, किसी के गुनाह की मालूमात में मत पढ़ो। मैयत के बारे में तो हदीसों का मज़ामीन है कि इसको भलाई के साथ याद किया जाए, न उसके अंदर जो भलाई वो बयान की जाए। अगर बुराई थी भी तो उसको अब हजत नहीं है, फिर वो ग़ीबत है, और मुर्दे की ग़ीबत जो है वो जिंदा की ग़ीबत से भी सख्त है। तो ये सवाल ऐसा करने का बस शायद कोई करता होगा, करते नहीं हमारे यहाँ ऐसा सवाल कि मैयत मरने वाला कैसा था, बल्कि लोग तारीफें ही करते हैं उसकी, और तारीफें भी मुबालगा करके नाजायज तारीफें करते हैं। जो मरने वाले को तो लोग विलायत से कम दर्जा कहाँ देते हैं, आम तौर पे इतनी उसकी फजीलत बयान करते हैं, भले वो जैसा भी हो लेकिन उसको चढ़ाते हैं। ये भी जायज नहीं है, झूठा मुबालगा तो जायज ही नहीं है। अगर आपको पूछे कैसा था तो अगर आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, आप जानते नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप बोलोगे मुझे पता नहीं है, और वो हमें हुस्न ज़न अच्छा गुमान करने का हदीसों में हुक्म है, तो ये मुसलमान है, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे, यूँ करके आदमी गुजर जाए। और इसको हो तो उसको भी नेकी की दावत दे दी जाए कि ये पूछना जो है ये कोई सवाब का काम नहीं है, ये किसी की मतलब टोह में पड़ना कि ये कैसा था बिला ज़रूरत। अब मरने वाले साहब का काम किया,
इसके बारे में आप मालूमात कर रहे हैं। मुर्दे को भलाई के साथ याद करो, अपने मुर्दों को भलाई के साथ याद करो, अपने मुर्दों की बुराई करने से मना है। तो वो जो भी था, हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं कि इसको बख्श देगा। हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं, हम दुआ करते हैं, भले वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ी उसने जिंदगी में, दुआ करने में हर्ज नहीं है, काफिर नहीं हो गया, मुसलमान है, दुआ करें। उसकी बुराई को माज़अल्लाह बयान करना इजाजत नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल